ہجرت کا پیارا منظر ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی یال پر۔ یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیمہ ام معبد ہے، یہ خیمہ ام معبد ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا، اور یہ خیمہ ام معبد کے اطراف میں یہ خاردار تار لگی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ام معبد کے خیمے سے سیر ہو کر جب دودھ پیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو سفر ہے، ہجرت ہے، وہ آگے کنٹینیو کر دیا۔ آگے جا کے کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے اور کون سے راستوں سے آپ گزرے، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ آتے نظر ہے آقا حکم خدا کے ام معبد کے خیمے سے دودھ پینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب آگے کی طرف بڑھے تو اہل مکہ جو اہل قریش تھے یا مشرکین مکہ کی جو میٹنگ ہو رہی تھی بنی مجلس میں، وہاں پر آ کر ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے ساحلی پٹی پر 3 سائے گزرتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ غالباً محمد رسول اللہ ہے۔ اس پر سراقہ ابن مالک کہنے لگا نہیں، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہ کسی اور قبیلے کے، کوئی فلاں قبیلے کے وہ شخص ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ساتھی کو آنکھ مار کے کہا کہ چپ رہو، اس معاملے میں نہ بولو۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو سراقہ ابن مالک اپنا گھوڑا لے کر، تیر کمان اور نیزہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے آ گئے۔ امانتیں اور بستر پہ بھی سلایا، سونپی امانتیں اور بستر پہ بھی سلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک گھڑ سوار جس کے ہاتھ میں تیر اور کمان بھی ہے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس گھڑ سوار کو دیکھ کر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس گھڑ سوار کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ جو سراپا عشق و وفا کا مظہر، یوں تو نبی کے در پر دنیا پڑی ہے، لیکن یوں تو نبی کے در پر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ پاکستان، ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ یہ اونٹ چروانے آئے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ پاکستان کہاں سے؟ اوئے ہوئے ہوئے، ماشاء اللہ، ہمارے سندھی بھائی ہیں۔ اور یہ والی اونٹنی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی قصوہ تھی، اس کے جو اوصاف ہیں اس سے ملتے ہیں، کیونکہ جو آقا علیہ السلام کی اونٹنی تھی وہ سفید کلر کی تھی، باقی سارے اونٹ براؤن کلر کے ہیں اور یہ والی سفید کلر کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بھائی صحیح ہے زندگی گزری پردیس میں؟ وفا کا مظہر، دنیا جہاں سے کٹ کر اب غار میں ہے تنہا، دنیا جہاں سے کٹ کر اب غار میں ہے تنہا۔ بھی بھائی کہتے ہیں آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو بھی اونٹ کا دودھ پی کے جائیں۔ میرے پاس برتن نہیں تھا، میں نے اپنا جو پانی ہے وہ ان کے برتن میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اس میں دودھ نکال دیں، اس میں دودھ پیوں گا، پھر ان سے پانی تھوڑا سا لے لوں گا راستے میں استعمال کے لیے۔ ابھی دودھ نکالنے لگے ہیں کسی اونٹ میں سے، سوری اونٹنی میں سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر۔
सुराका इब्न मालिक फरमाते हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मेरे घोड़े के अगले दोनों पाँव ज़मीन में धंस गए, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पे ज़मीन सख्त थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वो यहाँ कोई भी जगह हो सकती है, वल्लाहु ताला आलम कि वो ये जगह थी, तो थोड़ी सी आगे थी, थोड़ी इस तरफ थी, कोई भी जहाँ पे जगह वो हो सकती है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने घोड़े के दोनों पाँव बड़ी मुश्किल से ज़मीन से बाहर निकाले, तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे जा चुके थे। कहते हैं मैंने दोबारा पीछा करना शुरू कर दिया। जब फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो मेरे घोड़े के जो पाँव हैं वो ज़मीन में धंस गए। मैंने फिर घोड़े के पाँव बाहर निकाले और तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा चुके थे। फरमाते हैं कि ये अमल 3 बार हुआ। जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं जो गलत इरादे से आया था, नाउज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके 100 घोड़ों का 100 ऊँटों का इनाम हासिल करना चाहता था, मैं हुजूर से अमान मांगने लगा। कहते हैं मैंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अमान दीजिए, मैं आपसे अमान मांगता हूँ। मैं अब आपका पीछा नहीं करूँगा, बल्कि मैं वापसी की तरफ जाऊँगा और आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूँगा। अगर कोई यहाँ पर आपका पीछा करता हुआ आ रहा होगा तो उसको मैं कहूँगा कि मैं इस तरफ सारी छानबीन करके आया हूँ, आप इस तरफ नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कौन हो? कहते हैं मैं सुराका इब्न मालिक हूँ, बनी मदलिश के सरदारों में से एक सरदार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुराका, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं ये बड़ी बड़ी जो ढेरियाँ हैं ये नेचुरल हैं या खुद बनाई गई हैं, और एक से चढ़ो दूसरी के फिर आ जाती सामने ही। देखें अभी ये पीछे 2 गुजरी हैं, अभी ये आ गई है और ये रास्ता बना है सेंटर में। अच्छा, लेकिन हमको सीधा जाना है, यहाँ से उतर के फिर सामने पे चढ़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक आती जा रही है। अल्लाह अकबर। ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर, वो जोश और खुशी के लम्हात क्या ही कहने। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि सारा मक्का नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें कर रहा है, और आप मुझे बिलाद फ़ारस के कंगन पहनाने की खुशखबरी सुना रहे हैं। खैर, कहते मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप मुझे लिख कर दे दें कि मैं बिलाद फ़ारस के कंगन पहनूंगा, मैं किसरा के कंगन पहनूंगा। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बिलाद फ़ारस फ़तह हुआ तो हज़रत जो कि सुराका बिन मालिक थे, वो तब हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन चुके थे, और उन्होंने फिर किसरा के कंगन पहने। सुभान अल्लाह। वादिये कुदैत से निकलने के बाद अभी हम एक छोटे से सिटी में एंटर हुए हैं, और मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, इस साइड पे ये सारा साहिल है, दूर दूर तक जो समुंदर फैला हुआ है यहाँ पे। और अभी इंशाल्लाह कुछ देर के लिए इस मस्जिद में जाने का इरादा है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और थोड़ी सी सूरज की तपश कम होगी, फिर इंशाल्लाह सफ़र आगे कंटिन्यू करें। बराबर राह पर बिछे थे पत्थर, आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जाकर उन्हें ये लगा कि मुझे मक्का वापस जाना चाहिए। आपको मक्का शहर की जो फ़िक्र है वो लाहक हो रही थी, तो आपको ऐसा क्यों लगा और वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया और वो कौन सी जगह है, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये सामने बिल्कुल साहिली पट्टी है, और दूर आपको जो नज़र आ रहा है ये समुंदर है, और इस साइड पे जो आपको एंट्री गेट नज़र आ रहा है, ये साइड पे जो पोर्ट नज़र आ रही है बंदरगाह, ये किंग अब्दुल्ला बंदरगाह है। और हमारी जो डेस्टिनेशन है आज की, वो आज इस रोड के ऊपर है। इसको बदरवाला रोड भी कहते हैं, ओल्ड हिजरा रोड भी कहते हैं, और इंशाअल्लाह आज रात हम इस रोड के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत
प्यारा मंजर, ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर, ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। आज दूसरा दिन हम रात देर तक सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम सफ़र कर रहा हूँ ताकि मदीना पाक जल्द अज जल्द पहुँचा जा सके। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब हो चुकी है, रास्ते में हमें काफ़ी देर से इंशाल्लाह वो कज़ा करके पढ़ेंगे। सामने हमारी आज की डेस्टिनेशन आ गई है, इंशाल्लाह वहाँ पर चल के बात करते हैं आपसे। ठंडी ठंडी हवाएं, इस तरफ साहिल है और साहिल की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। ये जो पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये जो इलाका है ये है जुहफ़ा, और इस मिकात को मिकात अल जुहफ़ा बोलते हैं। यहाँ पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हिजरत के सफ़र में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मुझे मक्का वापस जाना चाहिए। आप वसल्लम को मक्का शरीफ के मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक हो रही थी कि वहाँ पर क्या मामलात होंगे। तो फिर इस वादी में, ये फ़िक्स वो जगह नहीं है, लेकिन इस वादी में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयात कुरान पाक नाजिल फरमाई, वही नाजिल फरमाई जिसका मफ़हूम ये है कि जो रब तुम्हें वहाँ से यहाँ पर लेकर आया है, वही रब तुम्हें वापस वहाँ मक्का लेके जाएगा, वो भी कुव्वत के साथ। फिर ये जो वादा अल्लाह पाक ने फरमाया था, ये 8 साल बाद फ़तह मक्का की सूरत में वो सच साबित हुआ। तो फिर ये इस जगह को बाद में मिकात मुकर्रर कर दिया गया। और ये जो मिकात है ये अहले मिस्र और अहले शाम के लोगों के लिए है। जो लोग मदीना पाक से हुए बगैर सीधा मक्का जाना चाहते हैं, वो इस मिकात से आकर एहराम बांधते हैं, और यहाँ से एहराम बांधने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए खाना काबा की तरफ रवाना होते हैं। तो आज का जो हमारा स्टे है वो इंशाल्लाह जुहफ़ा में होगा। इंशाल्लाह सुबह इसी मकाम से आप सबकी दुआओं के साथ आगे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में।